Bohr's theory of hydrogen atom. The hydrogen atom here that consists of the positive charge plus E over here, and an electron having the charge negative E, and that is revolving around this positive charge. Okay, so let us consider that r is the distance. This is r is the distance of an electron from the center of the nucleus. Okay, so now the Coulomb force of attraction between the nucleus and electron. Now Coulomb source. Now we have the Coulomb electrostatic force of attraction between this positive and the negatively charged electron is electrostatic force that is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 q1 q2 upon r square. So here q1 is equal to q2 and both are equal to E, and r to any orbit. So not for the first orbit n is equal to 1. We will put r is equal to rn for any orbit. So the electrostatic force of attraction between the positively charged nucleus and an electron in any orbit is equal to 1 by 4 pi epsilon 0. This is E square upon Rn square. This is the equation number 1. Okay. नाउ अब जिसकी हम बार बार चर्चा आपसे कर चुके हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो एक ऑर्बिट में घूमेगा। अब एक और ये ऑर्बिट में घूमेगा, दूसरी ओर ये पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस की ओर भी अट्रैक्ट होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ओवरकम करने के लिए यू शुड हैव सम सेंट्रीपिटल फोर्स दैट विल मेक द बैलेंस between the two, so that it will not go to the center. Okay, so the centripetal force that will keep the charge moving in the circular orbit of radius r is equal to mv square upon rn, and rn is the radius of any nth orbit, and vn is the velocity of an electron in any orbit, right? So this is equation number 2. So from equation 1 and 2, from equation 1 and equation number 2, we have from equation 1 and 2 we have this is mbn square upon rn is equal to E square upon 4 pi epsilon 0 rn square. Okay, so एक rn के साथ ये rn कैंसिल हो जाएगा। नाउ आप इसको कैसे ले सकते हैं, हम इसको जरा कुछ ब्रेक करके ऑपरेट करके लिखते हैं। हम ऐसा लिखते हैं m वी एन आर एन इंटू वी एन इज इक्वल टू ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई epsilon 0 like this. Okay, so this is the constant. Now the Bohr postulates came into picture from here. Bohr postulate will came into picture. He has said that that angular momentum of an electron revolving in stationary orbit. This is the mass of an electron, velocity of an electron in any orbit, and radius of an electron in any orbit must be equal to nh upon 2 pi. ये हमने बोहर पॉस्टुलेट्स में डिस्कस किया था। अब यहाँ देखें गौर से, हम इसको अब अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ एम वी एन आर एन की जगह हम लिख सकते हैं एन एच अपॉन 2 पाई। सो जो रिमेनिंग वी एन है इसको हम इवेल्युएट कर लेंगे। सो ये आपके पास आ जाएगा वी एन इज इक्वल टू ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू दिस पार्ट विल कम डाउन, और इसकी जगह हम लिख सकते हैं 1 अपॉन एन एच वाला पार्ट नीचे आ जाएगा और जो 2 वाला पाई वाला पार्ट है वो ऊपर चला जाएगा। ओके, सो सी हेयर आपके पास 2 के साथ यहाँ 2 रह जाएंगे और पाई कैंसिल हो जाएगा। वेलोसिटी ऑफ एनी nth orbit is now e square upon this is 2
एप्सिलॉन h और यहाँ हम n लिख देंगे। ओके, हम इसको ऐसे करते हैं, वेलोसिटी इन nth ऑर्बिट इज इक्वल टू c से मल्टीप्लाई करते हैं, c से डिवाइड कर देते हैं। दिस इज ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 h multiplied by c and divided by c into 1 by n. So if you will take this part is strictly constant. So यहाँ चार्ज का वैल्यू आप जानते हैं, दिस इज 1.6 क्रॉस 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम रहेगा, एंड एप्सिलॉन जीरो यू नो इट वेल 8.85, हम न्यूमेरिकल वैल्यू भी लिखेंगे 8.85 क्रॉस 10 टू द पावर माइनस 12, इसको आप यहाँ यूज़ करें। h that is Planck's constant, this is 6.6 cross 10 to the power minus 34 joule second, and then c is the velocity of light, comma c is 3 cross 10 to the power 8 meter per second. So if I will use this, we will have the value of this constant Vn is equal to c upon 137 n. सो इस कांस्टेंट को सॉल्व करने के बाद आपके पास यहाँ से सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आता है 1/137। आप कैलकुलेटर से और न्यूमेरिकली जैसे आप करना चाहें आप इसे कर सकते हैं, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। अब आप देखें इसकी उपयोगिता कितनी ज़्यादा है, इस फार्मूले का फ़ायदा कितना ज़्यादा है। इससे आप एकदम से समझ जाएंगे कि यदि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो c की जगह आप 3 क्रॉस 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड भर देंगे, डिवाइड बाय 137, n की जगह 1 पुट कर देंगे। एंड इफ यू हैव टू गो फॉर द सेकंड ऑर्बिट देन यू विल पुट n इज इक्वल टू 2, देन c विल रिमेन 3 क्रॉस 10 टू द पावर 8 137 क्रॉस 2। थर्ड ऑर्बिट में यदि आपको जाना है तो आप यहाँ n की जगह 3 पुट कर देंगे। सो इस तरीके से आप किसी भी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन किस तरीके से मूव करेगा उसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। So now from here on we'll just see कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आप इस वेलोसिटी को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए, so this is what n is, and here is n is bearing along this side, and velocity of an electron is bearing toward this side. So we'll just see that as the n will increase, the velocity of an electron will decrease. So the electron will move slowly in the outer orbits. Okay, so आप यहाँ से एक एग्जांपल ले सकते हैं कि if the same electron has to revolve in this outer orbit, so its velocity will decrease. Okay, so if you will select some another orbit, its velocity will decrease further. If it will go to this some outer orbit, then its velocity will decrease further. Okay, so if you are talking about some inner orbit, here on the velocity of an electron will be different. So this is all about the velocity of an electron in any orbit of the hydrogen atom. Okay, the radius of the electron, radius of the stationary orbit. So we all know that the Fc, we have seen that centripetal force is equal to the electrostatic force. So we will start from the same. Okay, centripetal force is mvn square upon Rn, and electrostatic force is 4 pi epsilon 0 E square upon 4 pi epsilon 0 Rn square. Okay, so we are left with this part. So here we have to calculate the radius of nth orbit. Okay, so we have to introduce the Bohr quantization condition. Okay, so that is this is m time Vn Rn is equal to nh upon 2 पाई। क्योंकि हमें इसमें बोहर पॉस्टुलेट्स को इंक्लूड करना है तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लें और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लें। यू विल फाइंड इट सो इजी।
यहाँ हम वी एन का जो वैल्यू है वहाँ निकाल लेते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा एन एच अपॉन 2 पाई इंटू 1 अपॉन m time Rn. This is equation number 3. So from equation number 1 and 3, from equation 1 and equation 3 we have, अब आप Vn की जगह आप पुट कर सकते हैं m एंड Vn स्क्वायर की जगह हम लिख देंगे NH अपॉन 2 पाई का स्क्वायर हो जाएगा इंटू 1 अपॉन m स्क्वायर Rn स्क्वायर हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में आपके पास बचेगा ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 एंड आर एन ओनली। तो एक आर एन के साथ एक आर एन कैंसिल हो जाएगा, एक एम के साथ एक एम कैंसिल हो जाएगा। सो आर एन को हमने कैलकुलेट करना है, सो आर एन को हम सेपरेट कर देंगे। विल टेक इट टू द राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा दिस इज एन एच अपॉन 2 पाई होल स्क्वायर एंड इंटू 4 पाई एप्सिलॉन 0 इधर आ जाएगा। वी विल हैव 4 पाई एप्सिलॉन 0 डिवाइड बाई एम, और जो ई स्क्वायर है वो नीचे आ जाएगा 1/e² एंड आर एन जो है वो सेपरेट हो जाएगा। सो वी हैव हियर आर एन इज इक्वल टू, हम इसको ऐसे ले सकते हैं, we have now Rn is equal to, this is n square upon m, we can write it like this, n square upon m, यहाँ से n स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ से m आ जाएगा, एंड देन h अपॉन 2 पाई होल स्क्वायर, ये सब कांस्टेंट है, h upon 2 पाई whole square, this is h upon 2 पाई whole square, and we are left with 4 pi epsilon 0 upon e square. These are all constants, so 4 pi epsilon 0 upon e square. So every value is now constant. M is the mass of an electron, this is mass of an electron, this is Planck's constant, epsilon 0, this is the permittivity of free space, then this is E is the charge on an electron. So it will substitute n is equal to 1, right? So you will substitute n is equal to 1. We are left with the for r is equal to 1. This is n is equal to 1. This is h square if n is equal to 1. Okay, for the first orbit. So we have r1 is equal to, we have h square epsilon 0 upon pi m e square. Okay, so this is called the Bohr radius. This is called Bohr radius. यहाँ से आप देख सकते हैं इसको कि किस तरीके से होगा। आप इसको ऐसा लिखें, n जो है वो 1 हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/m इंटू h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर इंटू 4 पाई एप्सिलॉन 0 अपॉन ई स्क्वायर। सो 4 के साथ 4 कैंसिल हो जाएगा, एक पाई के साथ एक पाई कैंसिल हो जाएगा, एंड यू आर लेफ्ट विद h स्क्वायर एप्सिलॉन 0 इन द न्यूमरेटर एंड m pi m e square in the denominator, right? So this radius is represented by a0, इसको हम a0 से represent करेंगे। So a0 is the first Bohr radius upon pi m e square. Okay, and this a0, यदि हम इन सब कांस्टेंट्स की वैल्यू को यहाँ लिखते हैं, इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं और इसको वैल्यूट करते हैं, this will come out to be 5.29 cross 10 to the power minus 11 meter. Okay, so this is very interesting. Now if we have to go for the second Bohr radius, second orbit की जो radius होगी
उसको यदि हम लिखेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन होगा वो इस तरीके से हो जाएगा, रेडियस ऑफ an electron in any orbit is equal to a0 time n square. So we will substitute n is equal to 2. I can write now a radius of any orbit is directly proportional to n square. So here a0 is here 5.29 cross 10 power minus 11 meter. So इफ n इज इक्वल टू 2, आपको चाहिए कि आपको सेकेंड बोहर ऑर्बिट की जो रेडियस निकालनी है, तो आप n इज इक्वल टू 2 पुट कर दें और इसके साथ 4 का मल्टीपल हो जाएगा। यदि आपको थर्ड ऑर्बिट में रेडियस निकालनी है तो यहाँ 3 पुट कर दें, a0 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। फॉर एग्जांपल आपको निकालना है सेकेंड बोहर ऑर्बिट की रेडियस, तो a0 का वैल्यू हो जाएगा 5.29 क्रॉस 10 टू पावर माइनस 11 मीटर, और सेकेंड ऑर्बिट के लिए n इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। सो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, इट इज़ 4 टाइम, दिस इज़ 4 टाइम a0 हो जाएगा। और जो थर्ड ऑर्बिट की जो रेडियस होगी वो क्या हो जाएगी, 9 टाइम a0 हो जाएगा। सो इट इज़ सो ईजी टू डू इट, राइट। सो यदि हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखने की कोशिश करें कि ग्राफिकली ये कैसे वेरी करेगी, सो यू कैन लर्न इट लाइक दिस। यदि हम n को, नंबर ऑफ ऑर्बिट को हम x एक्सिस में लें और रेडियस को हम y एक्सिस में लें, then with increasing number of orbits the radius will increase like this, somewhere like this. Okay, so this is the graphical variation, graphical representation of the radius with the increasing number of orbits. Thank you. The velocity of an electron in nth orbit and the radius of electron uh, in the different orbits. Okay, so we will now concentrate on the total energy of electron in stationary states of hydrogen atom. We'll concentrate now on the total energy of an electron in stationary state states of hydrogen atom. So you will find this discussion so simple. आपको ऐसा लगेगा कि बहुत साधारण जो है हमारे पास डिस्कशन रहेगी। हमने अभी तक किया है कि जो टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन दैट इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों का सम रहेगा। और इसको हमने निकाला था कि दिस वाज इक्वल टू माइनस ऑफ ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 एंड दिस इज आर एन, राइट। एंड वेयर आर एन, जिसको हमने अभी अभी इवेल्यूट किया है, दिस इज एप्सिलॉन 0 एच स्क्वायर अपॉन अ पाई एम ई स्क्वायर into n square. Okay, so mark this as equation number 1 and this as equation number 2. Now from equation 1 and 2, from equation 1 and equation number 2, we have, from equation 1 and 2, energy of an electron in any orbit, in any stationary orbit, is equal to minus e square upon 4 pi epsilon 0. Now in place of Rn you can write इसको कुछ इस तरीके से भरते हैं हम, दिस इज एप्सिलॉन 0 h स्क्वायर n स्क्वायर डिनोमिनेटर में आएगा, एंड दिस इज पाई m e स्क्वायर, दिस विल बी इन द न्यूमरेटर, ये ऊपर वाले पार्ट में चला जाएगा। एंड इफ वी विल सॉल्व नाउ, if we'll now solve this part, e square pi mass of an electron, charge on an electron का स्क्वायर हो जाएगा, 1/4 pi epsilon 0 का वैल्यू 9% of 9 हो जाएगा। If we substitute all this the values of these constants, then this energy in joules it will be, so if we will solve it, we will write it first, and it is minus of me, पाई के साथ पाई कैंसिल हो जाएगा, वी विल लेफ्ट विद एम ई की 4 अपॉन 8 n स्क्वायर एप्सिलॉन 0 स्क्वायर h स्क्वायर। ओके,
So we will substitute the values of the constant. We will find that this energy in joules is equal to 2.18 cross 10 to the power minus 18 divided by n square. This much joule. Okay, so we know that 1 electron volt is equal to 1.6 क्रॉस 10 टू पावर माइनस 19 जाउल. यहाँ से आप 1 जाउल निकाल सकते हो. 1 जाउल इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओवर 1.6 क्रॉस 10 टू पावर minus 19 electron volt. So in place of this you can substitute 1 joule. So energy of an electron in nth orbit is equal to minus of 2.18 cross 10 to the power minus 18 upon n square. और 1 joule की जगह आप क्या लिख सकते हो? This is 1 electron volt over 1.6 cross 10 to the power minus 19. So you will have at the end, this is minus of 13.6 divided by n square electron volt, right? So if you have to find the energy in the first orbit, so we have to put n is equal to 1. Okay, this is by n square electron volt. So this is a basic expression we have to use. इस expression को हमने इस्तेमाल करना है. So E1 you can find now for n is equal to 1. For n is equal to 1, so we will have E1 is equal to minus 13.6 electron volt only. Okay, so for in the second orbit, n is equal to 2. So for n is equal to 2, just put here E2, it is equal to minus 13.6 divided by square of the 2. ये देखिए 2 का स्क्वायर आप यहाँ भरेंगे, इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होगी. दिस इज minus 13.6 divided by 4 electron volt. So with this way you can find in the third orbit. Similarly, this is equal to minus 13.6 divided by 9 electron volt. In fourth orbit by 16. In fifth orbit by 25. So with that way in the different orbit you can find the energy of an electron. आपने ये देखा कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिट में घूमता है तो उसकी जो वेलोसिटी होती है वो होती है 1.37 c अपॉन एन. तो आप एकदम से n की वैल्यू सब्सटीट्यूट करते चले जाइए और आप चीज़ों को निकालते जाइए. अब मैं यहाँ लिख देता हूँ कि वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अभी तक हमने जो पढ़ा, दिस इज 1 अपॉन 137 c वेलोसिटी ऑफ लाइट डिवाइड बाई n. n की वैल्यू पुट करते चले जाइए, आपको पता चल जाएगा कि पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन किस स्पीड से चलता है, दूसरे में किसे चलता है, तीसरे में किसे चलता है, चौथे में कितने से चलता है, और उसके लिए अलाउड ऑर्बिट जो है उसकी रेडियस क्या. तो यदि आपने ये भरना है जानना है तो आप A0 टाइम n स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे. और यदि आपको देखना है कि किस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी कितनी है तो उसके लिए आपके पास फार्मूला है minus 13.6 divided by n square electron volt. So with these formulas you can get the informations, required informations. अब सबसे बड़ा बात यह है कि हमने फिजिक्स सीखना है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको क्या बता रही है. तो उस पहले वाले पार्ट को हमने ग्राफिकली स्टडी कर लिया है, फर्स्ट 2 कि वेलोसिटी ग्राफिकली कैसे वेरी करेगी ऑर्बिट के साथ, रेडियस कैसे वेरी करेगी ऑर्बिट्स के साथ, नंबर ऑफ ऑर्बिट के साथ. हम यहाँ देखते हैं कि जो एनर्जी किस तरीके से फिजिक्स को एक्सप्लेन करती है. तो इसमें नेगेटिव पार्ट ऑफ एनर्जी आपको क्या बताता है, जब टोटल एनर्जी विल रिमेन नेगेटिव, इसका मतलब जो है इलेक्ट्रॉन विल रिमेन बाउंड टू द न्यूक्लियस. इलेक्ट्रॉन जो है जब तक उसकी टोटल एनर्जी नेगेटिव रहती है तब तक वो अपने ऑर्बिट के किनारे हमेशा घूमता रहेगा. बट यदि एनर्जी पॉजिटिव होगी, देखिए फॉर एग्जांपल हम ये डायग्राम यहाँ बनाते हैं, ये रहा सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस और ये रहा ऑर्बिट फॉर एन इलेक्ट्रॉन टू रिवॉल्व. सो जब तक इस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो टोटल एनर्जी नेगेटिव रहेगी, ये किसी न किसी ऑर्बिट के किनारे में ही घूमता रहेगा. बट जैसे ही एनर्जी इसकी पॉजिटिव हो जाएगी तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट को छोड़ देगा. फॉर एग्जांपल आप यहाँ देखिए E1 इज इक्वल टू माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इस जो फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. अब आप चाहते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से लिबरेट किया जाए
और वो अपने न्यूक्लियस को छोड़ दे, तो इस एनर्जी को आपको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। और यदि आपने इसको पॉजिटिव बनाना है तो आपको कितनी एनर्जी और देनी पड़ेगी, प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देनी पड़ेगी। और टोटल एनर्जी जीरो हो जाएगी। जीरो मीन्स हैविंग नो साइन, नेगेटिव साइन चला जाएगा और इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने सर्कुलर ऑर्बिट को छोड़ देगा। सेकेंड ऑर्बिट में क्या होगा, आप इसको देखेंगे, आई थिंक इट इज़ 3.4। इसको यदि हम सॉल्व करें तो आ जाएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यदि इस ऑर्बिट से आप इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना चाहते हैं तो ये नेगेटिव है ना, टोटल एनर्जी इसकी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये पॉजिटिव होनी चाहिए। पॉजिटिव होनी चाहिए तो आपको +3.4 एनर्जी प्रोवाइड करानी पड़ेगी। और जैसे ही नेगेटिव साइन जाएगा वैसे ही इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने न्यूक्लियस का अट्रैक्शन खो देगा और वो सर्कुलर ट्रैक में घूमना बंद कर देगा। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच।